آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی ایڈوانس میں آپ نے کہا کہ اس کا ٹائم دینا ہوتا ہے۔ Please don't tell me what to do, I know what to do. میں اوپن چیلنج اور آن اوتھ حلف لے کے، یہ اوپر حلف ہے، اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے، سر مجھے آن اوتھ بتا دیں کسی نے یہ پڑھا ہو۔ تصویریں ان کی لے جو پاکستان سے غداری کر رہے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کو ڈبونا چاہتے ہیں، جو IMF کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں۔ خواتین و ذات، آپ لوگوں نے پڑھے، راجہ اشرف صاحب آپ نے یہ پڑھے؟ ہر وقت قیدی کے پیچھے نہ کھڑے ہوا کریں۔ یہ ملک دشمنی چھوڑنا پڑے گی آپ کو۔ 25 کروڑ عوام کا سوچے۔ آپ دو باتیں جناب اسپیکر، یہ سارے وہ لاز ہیں جو صرف ہم سنک کر رہے ہیں 2023 کے SCO ایکٹ کے ساتھ۔ جہاں پہ اعتراض ہوگا اس ہاؤس کے سامنے آئے گا ووٹنگ کے لیے، جو چیزیں غیر مناسب ہوں گی ہم خود وڈرا کریں گے ان کو۔ جی اسد کیسر صاحب، اسد کیسر صاحب، میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ روایتی ٹریڈیشن تھا، شہباز شریف صاحب 10 گھنٹے 2 گھنٹے تقریر کرتے تھے۔ اگر اپوزیشن لیڈر جس کے پاس سب سے بڑا مینڈیٹ ہے، ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں ہوئے، ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں ہوئے، سارا پہنچیے، اس لیے جی وہ جب ہو رہی ہے اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے۔ دوسری میں نوید قمر صاحب، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اس فلور پہ بات کی تھی کہ جو بھی ہوگا ہم رولز کو وائلیٹ نہیں کریں گے، رولز کے مطابق چلیں گے۔ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی ایڈوانس میں آپ نے کہا کہ اس کا ٹائم دینا ہوتا ہے، اس طرح جو نہیں بل لے کے آتے ہیں، یہ مذمت کرتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کو ٹائم دے۔ جی اب آ جائیں جی۔ I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the following ordinances for a further period of 120 days with effect from dates mentioned against each under provision of sub 2 of para A clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. جی عمر ایوب صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ جی عمر ایوب صاحب آپ بات کرنا۔ جناب اسپیکر شکریہ۔ جناب اسپیکر سب سے پہلے میں اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں کی طرف سے یہاں پہ بہت سخت احتجاج فلور آف دا ہاؤس اور تاریخ میں یہ ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو آپ نے جس وقت یہ آرڈیننسز لے ہوئے اور اس پہ آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، یہ بلڈوز ہوا ہے، اس پہ ہم لوگ احتجاج یہاں پہ ایز اے ریکارڈ آپ کو سامنے کر دے اب آپ رہے ہیں۔ انہی آرڈیننس پہ تیسری دفعہ بات کر رہے ہیں۔ سر میں اس پہ نہیں، یہ جس وقت ہو رہی تھی بات سر ہم لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز سر، یہاں پہ جناب اسپیکر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ نہ ہوا تو آسمان نیچے آ جائے گا اور زمین جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی۔ آرڈیننسز ہیں کیا؟ آرڈیننسز ہیں سر، ایک آرڈیننس ہے پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ آرڈیننس 2002، اس پہ یہ چینجز لانا چاہ رہے ہیں سر۔ اس پہ ایک آپ دیکھیں ریموول آف ڈیفیکلٹیز، یہ ایک نقطہ ایک لفظ قانون کا اس کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سر مسچف ان دا لا۔ وہ مسچف ان دا لا، یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں چیلنج کرتا ہوں، چلیں ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کتنوں نے یہ پاکستان پوسٹل سروسز آرڈیننس پڑھا ہے؟ کیا اس پہ کوئی ڈیلیبریشن ہوئی ہے؟ مجھے بتا دیں سر، میں اوپن چیلنج اور آن اوتھ حلف لے کے، یہ اوپر حلف ہے، اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے، سر مجھے آن اوتھ بتا دیں کسی نے یہ پڑھا ہو۔ میں نے نہیں پڑھا سر، ہمیں تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے۔ نمبر 1 یہاں پہ سر اس پہ آپ سیکشن 5 کو پڑھیں، سبسٹیٹیوشن آف سیکشن 28 آرڈیننس آف 2002۔ اس کا 28 میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ جاتا ہوں، ریموول آف ڈیفیکلٹیز، مسچف ان دا لا، جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹریپ ڈور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے لیے آسانیاں کیا، اپنے لیے خانچے بنانے کے لیے۔ یہاں پہ آپ پڑھیں سر، as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty۔ as may be necessary کیا چیزیں ہوں گی؟ وہ ڈیفیکلٹی کون تعین کرے گا؟ کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں؟ خواتین و ذات آپ لوگوں نے پڑھے؟ راجہ اشرف صاحب آپ نے یہ پڑھے؟ یہاں پہ خورشید صاحب جو ہے، خورشید شاہ صاحب، کیا آپ نے پڑھے؟ اینڈ دی آنسر از نو۔ یہ تہ خانوں میں خانچے جو بنا رہے ہیں یہ حکومت والے سر، یہ کس کی کہنے پہ؟ دوسرا آ جائیں جناب اسپیکر، یہاں پہ آپ
नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पे ये इतनी लंबी चौड़ी आपकी तरामीम आ रही हैं। जनाब स्पीकर, यहां पे नेशनल शिपिंग में आप ये तरामीम ला रहे हैं, इसको कौन सी स्टैंडिंग कमेटी ने पढ़ा है? यहां पे आप देख लें, फिर यहां पे आ जाता है, यहां पे सेक्शन 40 में आप रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, मैं फिर वहां पे ला रहा हूं, ये बहरी जहाजों की बारे में बात कर रहे हैं। आपके रेट्स वहां पे फिक्स होते हैं, वहां पे आपके टूर्स लग रहे होते हैं, जहाज बाहर जा रहे होते हैं, बहरी जहाज, वहां पे सर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं कि एज में अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टी। वही बात मैं पूछूंगा जनाब स्पीकर, उस चीज का वो नेसेसरी की डेफिनेशन हमें बता दें। क्या आप हजरात ने ये पढ़ा है? आपने पढ़ा है क्या? ये पटेल साहब कह रहे हैं नहीं पढ़ा। सर यहां पे दूसरी बात आप देखें कि डिफिकल्टी कौन है, उसकी क्या कौन तयन करेगा? वहां पे आप खांचे खोल रहे हैं, वहां पे करप्शन का अंबार लगेगा, और यहां पे हमारे मेंबर्स को इनको पता नहीं है। उनको छोड़े सर, ये मुस्लिम लीग नून वालों को नहीं पता, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। आगे आ जाए जनाब स्पीकर, आप यहां पे माशाल्लाह आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सर ये देखें, इस पे क्या कुछ नहीं हो रहा। रोड्स बनती हैं, नेशनल हाईवेज बनते हैं, उस पे ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स। जनाब स्पीकर, आपने तो हमें टाइम ही नहीं दिया इसका पढ़ने के लिए। ये कानून हमारे पास माहिरीन कानून बैठे हैं, इनको टाइम नहीं मिला इसका एक्ट, इसके ऑर्डिनेंसेस, उसका स्टडी करना, उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या करना। आप अपने ठेकेदार को अगेन ये बात, जिस वक्त मैं अभी इसको चेक कर रहा हूं सर, बार बार एक चीज आ रही है, यहां पे भी आपका पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, पोस्टल सर्विसेज में यहां पे ये आप देख लें जनाब स्पीकर, पेज नंबर 9, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अगेन as may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty, as may be necessary का तयन किसने किया? उन मुश्किलात का, डिफिकल्टी का तयन कौन करेगा? हमें बता दिया जाए। रेट आगे ये अपने मन पसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे, पीछे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। अरबों रुपए के पहले ही हम लोग कर्जोई हैं, ऊपर ये माशाल्लाह अपनी जेबें फुल कर दें, पीछे रहेगा क्या? पहले भी होता जा रहा है, अभी भी। फिर आगे आ जाए जनाब स्पीकर आप, अमेंडमेंट फॉर द प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस। सर हमें क्या मालूम, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में मुल्क के असासे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए बेचे जाते हैं। एक एक लफ्ज अरबों खरबों की वैल्यू है वहां पे जनाब स्पीकर। यहां पे ये बात आ रहा है, अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में आ रहे हैं, स्टेट यहां पे आप आ रहे हैं जनाब, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस। इस पे हमें क्या मालूम, हमें अप्रेस करने का टाइम नहीं मिला। यहां पे आप करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, किसका इंपैक्ट? ये नवीद कमर साहब रह चुके हैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, इनसे पूछे इसका इंपैक्ट क्या होता है। क्या ये इसके साथ will नवीद कमर साहब be able to stand behind these amendments? क्या ये इसको सपोर्ट कर सकेंगे? क्या ये बाकी साथी इसको सपोर्ट कर सकेंगे? जी सर, इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल है, जवाब लेता हूं, इससे आप फिक्र ना करें। अरबों का नहीं है, खरबों का है। यहां पे सर मैंने जिस वक्त आपने मेरा माइक ऑन नहीं किया था, मैंने आपसे गुजारिश की थी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तकरीर कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन यहां से पढ़ लीजिए। जी सर मैं वाइंड अप करता हूं। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। हम लोग ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाह रहे हैं, और तारीख उनको याद करेगी कि इन्होंने पाकिस्तान को। जी मिनिस्टर साहब, मैं 2 चीजों की गुजारिश करूंगा। नहीं, अब मैंने कोई पॉइंट ऑफ, नंबर 1, ये जितने ऑर्डिनेंसेज हैं ये आप असेंबली में लाएंगे, कमेटियों को भेजेंगे, पास करेंगे, या वैसे ही कर देंगे? एक ये सवाल भी है। दूसरा, मिसचिफ इन लॉ का भी, जरा मिसचिफ इन लॉ उन्होंने कहा है, वो क्या, जरा मुझे उसकी समझ नहीं है, जरा वो भी एक्सप्लेन करें। लॉ मिनिस्टर का माइक खोलें। मेरे भाई बैठे हुए जो कानूनदान है, मेरा ख्याल है गौर अयूब साहब भी शायद प्रैक्टिस करते रहे हैं, उमर अयूब साहब, मुझे नहीं मालूम प्रोफेशन क्या है इनका, मेरी थोड़ी सी इल्मी का मायगी है। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अगर मैं सीने पे हाथ रख के बतौर वकील कहूँ तो गौर साहब मुझे बता दे कि कौन सा ऐसा कानून है जिसमें ये क्लॉज नहीं होती। बोर्ड्स को सर
बोर्ड्स को स्टेट ने जकड़ा हुआ था, गवर्नमेंट ने बोर्ड्स को ऑटोनॉमी दी गई है, कोशिश की गई है कि वो इफेक्टिवली काम करें और उसी के लिए ये इख्तियार उन्हें दिया गया है। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि उनकी तस्वीरें ले, मैं जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करूंगा कि तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, अब वो आगे नहीं चलने दे रहे। खुदा के लिए पहले पढ़ लिया करे, बात करने से पहले पढ़ा करे, पढ़ने के लिए आपके सामने रखा है। तीसरी बात जनाब स्पीकर, आपने फरमाया ये आज बिलों में कन्वर्ट हो गए हैं और ये जा रहे हैं स्टैंडिंग कमेटीज को। मेरी इस्तदा आपसे ये होगी कि इन्हें कहिए कि ये कानूनी तौर पे ये बताएं कि इनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, क्योंकि अभी तक जनाब स्पीकर के सेक्रेटेरिएट में इनके लीगल स्टेटस का ही तयन नहीं हुआ। और कल पेशावर हाई कोर्ट ने भी 5 जजेस ने कह दिया कि आप घर जाएं, आप घर जाएं, आपका कोई इस्तेहकाक नहीं है। ये बताएं कि वो 3 करोड़ वोट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पड़ गए जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो प्लीज बात करने से पहले उसे देख लिया करें। ये बिल जा रहे हैं, ये कमेटीज में जाएंगे, ये आईने पाकिस्तान के ताबे अपना लीगल स्टेटस एस्टैब्लिश करें कि इनका लीगल स्टेटस क्या है। उसके बाद ये अपने हिस्से के मुताबिक कमेटीज में जाएंगे और फिर ये बिल वापस आएंगे। मैंने नवीद कमर साहब के सवाल के जवाब में ये बताया कि वजीर आजम साहब की हदायत है कि तमाम हलीफ जमातें अपने नुमाइंदे मुकर्रर करेगी, किसी लेजिस्लेटिव बिजनेस को बुलडोज नहीं किया जाएगा। और मैं ये दरख्वास्त करूंगा अपोजिशन से भी कि मुल्क सबका है, रियासत सबकी है। खुदा के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, मईशत को चलाने के लिए, गरीब आदमी की जिंदगी आसान करने के लिए आप भी अपना रोल प्ले करें, हर वक्त कैदी के पीछे ना खड़े हुआ करें। मैं एक चीज जरा पढ़ के बता देता हूं। आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 3 पढ़ लें। An ordinance laid before National Assembly under sub-para 1 of para A of clause 2 shall be deemed to be bill introduced in the National Assembly. इसका B है, an ordinance laid before both houses under sub-paragraph 2 of paragraph A of clause 2 shall be deemed to be a bill introduced in the house where it was laid. जी खुर्शीद शाह साहब। Mr. Speaker, मैं जी प्लीज डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई नो व्हाट टू डू। जी खुर्शीद शाह साहब। मिस्टर स्पीकर, मैं एग्री कर रहा हूं अपोजिशन के साथ कि ऑर्डिनेंस पे हुकूमतें नहीं चलती। जी ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पे कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मगर एक और मुतालबा जरूर करूंगा, वो ये है कि 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 22 तक रिकॉर्ड निकाला जाए। इन तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज्यादा है, ये जरूर करें। जी निकाल लेते हैं।